اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بے انتہا تعریف و ستائش، اسی کے فضل و توفیق سے ہم یہاں آج جمع ہیں۔ اسی کی مہربانی سے اب تک ہم رمضان کے قریب پہنچے ہیں، اور اللہ عز و جل سے ہم ویسے ہی دعا کرتے ہیں جیسے ہمارے سلف صالحین دعا کرتے تھے، اللہم سلمنا رمضان وتسلم منا، کہ اے اللہ تو سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان میں ایسے نیک اعمال کرنے کی تو ہمیں توفیق دے کہ تو اس سے راضی ہو جائے اور تو اسے قبول فرما لے۔ انگن تو لا تعداد درود السلام پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم معزز مشارکین، پارٹیسپینٹس اور ہمارے پیارے دینی بھائیوں اور بہنوں، جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان بہت قریب ہے، تو اسی مناسبت سے استقبال رمضان کے عنوان پر آج کا یہ ہمارا بیان ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ میسیجز کا سلسلہ یا تو روک دیا جائے، ورنہ کافی ڈسٹرب ہو جائے گا اسپیکر کو بھی اور آڈینس کو بھی، یا پھر خود ہی سب لوگ خاموش رہیں کچھ دیر کے لیے اور توجہ سے بات کو سننے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے میں ہمارے معزز ہوسٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کچھ وقت کے لیے آڈیو بھی سب کا میوٹ کر کے رکھ دیں، تاکہ کسی طرح سے کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ توجہ سے پوری بات کو اگر نہیں سنیں گے تو وہ کچھ کا کچھ اور ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی بات پوری توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین یتبعون القول، وہ لوگ الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، قرآن میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور جو اچھی نصیحتیں سنیں ان پر عمل کرتے رہیں۔ چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک استقبال رمضان ہے، کیا مطلب؟ ہاؤ وی کین ویلکم، ہم کیسے خوش آمدید کہیں، کیسے رمضان کا استقبال کریں۔ اور عموماً ایسے موقع پر ہمارے معزز علماء اکرام سلف صالحین مثال دیا کرتے ہیں کہ آپ کے گھر اگر کوئی ایک نارمل آدمی آ رہا ہے، یا کوئی دوسرا ایک ایسا آدمی آ رہا ہے جو بہت زیادہ اس سے آپ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کو آپ مقام و مرتبہ دیتے ہیں، تو کیا اپنے گھر میں ان دونوں کے استقبال کا ایک ہی انداز ہوگا؟ چلیے، جب آپ لوگوں کو میسج کرنے کا ہی شوق ہے تو مجھے یس یا نو لکھیں، یس لکھیں یا ین لکھیں کہ کیا دونوں کا استقبال ایک طریقے سے ہوگا؟ اس میں تھوڑی سی میری بھی غلطی، میں اس طرح کی عادت ڈالا ہوں انٹریکٹیو تعامل والا رکھنے کے لیے، تو شاید لوگوں کو عادت ہوگی جی 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 جی، تو اچھی کچھ بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا کہتے ہیں اس کو، ابھی چونکہ ایک لیکچر شروع ہوا ہے تو اس سے ریلیٹڈ بات نہیں تھی نا، تو میں اس لیے خاموش رہنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن عادت ہے تو چلیے، میں نے کہا کہ اس عادت کو اچھے میں استعمال کریں گے۔ اب میں سوالات کرتا رہوں گا کچھ، اس لیے کہ استقبال رمضان کیسے کیسے کریں گے ہماری بھائی بہن، وہ انشاءاللہ خود بھی اپنے تجربات بیان کرتے رہیں گے۔ بڑی اچھی چیز ہے الحمدللہ۔ اس سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ موبائل بازو میں رکھے ہیں، پارٹیسپینٹ تو 100 نظر آتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، دل و دماغ کہیں اور ہے۔ کہتے ہیں نا، جسم حاضر دماغ غائب، اس طرح سے بھی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اٹینشن رکھیں گے، سوالات کرتے رہیں گے، جواب لیتے رہیں گے تو بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ تو بہت سے بھائیوں نے ماشاءاللہ تبارک اللہ جواب دیا ہے کہ نہیں، ہم سب کا استقبال، یعنی دونوں کا استقبال ایک طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ تو اب رمضان المبارک اسلامی سال کے 12 مہینوں میں وہ عظیم المرتبت، عظیم القدر، اتنا بڑا ویلیوبل مقام و مرتبہ والا مہینہ ہے کہ اللہ اکبر۔ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام سے کیا فرمایا تھا؟ اتاکم رمضان شہر مبارک. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مبارک قرار دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد کی بشارت، اس کے آنے کی خوشخبری سنا رہے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے آئیڈیل، سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، یہ خوشخبری دینے کے ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین. کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے تم پر فرض قرار دیا ہے، اور اس مہینے میں آسمان کے دروازے، ایک اور روایت میں رحمت کے دروازے، ایک اور روایت میں صحیح بخاری کے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان مردود کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو ذرا غور فرمائیے کہ اس مہینے کی آمد کی خوشخبری سناتے ہوئے جنت کے دروازوں کے کھل جانے، جہنم کے دروازوں کے بند ہو جانے، شیاطین کو جکڑ دیے جانے کی جو خبر دے رہے ہیں، حقیقت میں ہمیں اس مہینے کا کس طرح سے استقبال کرنا ہے، جنتوں میں جانے کے لیے اس مبارک مہینے میں کن چیزوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے سیف رکھنے کے لیے. اور اس مہینے میں جب شیاطین خود جکڑ دیے ہیں ہمارے اب سے اپنے نفسانی خواہشات کو، ہم ہمارے اپنے اندر کے شیطانوں کو کب جکڑیں گے تاکہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اس مہینے کو گزار سکیں اور اس کا صحیح استقبال کر سکیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کبھی ہم کچھ فضائل سنتے ہیں اس مبارک مہینے کے، اچھا یہ بھی ایک فضیلت، سیکنڈ یہ بھی ایک، تھرڈ نمبر میں یہ بھی ہے. صرف واہ واہ کے لیے اتنا نہیں، اس سے پریکٹیکل ہمارے لیے کیا اس کے اندر پیغام ہے، ہمارے ایمان سے ریلیٹڈ، ہمارے ایمان کو بڑھانے والی کیا اس کے اندر چیز ہے، ہم نیک عمل میں آگے بڑھ کر جنت میں داخل ہو سکیں، برائیوں سے بچ کے جہنم سے بچ سکیں. اس طرح کا کون سا پیغام ہے، اس پر توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے. تو اب ہم رمضان کا استقبال کس طرح سے کریں؟ پھر وہی مثال جو اپنے گھر آنے والے مہمان کے حوالے سے، کہ جس قدر بہتر طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں اپنے گھروں کی صفائی کے ذریعے، اور ہم اپنے بہتر سے بہتر طریقے سے استقبال کرتے ہیں. خود اپنے آپ کو ان کے سامنے جتنا ممکن اچھے طریقے سے پیش کریں، جتنی اچھی بات کر سکیں اس طرح سے ہم پیش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہماری بہت ساری مائیں بہنیں رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے گھروں کی صفائیاں کر لیتی ہیں، بہت ساری بہنیں. بلکہ جو اپنے دینی کاموں میں ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے بہت سارے کاموں کو ترتیب دے لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اگر یہ ترتیب عموماً ہمارے بہت سارے مسلمان مردوں عورتوں کی گھروں کی صفائی کے حد تک، گھروں کے اندر اپنے بہت سارے روموں کی ترتیب کے حد تک، عید سے پہلے پہلے کون سا روم کس طرح سے رہنا ہے اس کے حوالے سے، تو یہ کافی نہیں، ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ. لیکن اس سے بڑھ کر اپنے دلوں کی صفائی. جی ہاں، اپنے دلوں کی صفائی. کیوں؟ کس چیز سے دل کی صفائی؟ ہمارے اور اپنے اللہ کے درمیان حسن تعلق بننے کے لیے، ہمارے اور اپنے رب کے بیچ میں
शिर्क की, बिदअत की, गुनाहों की जो कुछ गंदगियां आड़े आती हैं, उन सब को साफ करके, और साथ ही साथ अपने मुसलमान भाइयों बहनों, बिलखुसूस अपने रिश्तेदारों के हवाले से अपने दिलों को साफ करके। जी हां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सही साबित है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सहीह तरगीब में जिक्र फरमाया, सौमु शहरि सब्री व थलाथतु अय्यामिन मिन कुल्लि शहर युद्हिबन वहर सद्र। सब्र का महीना जो रमजान है, उसके रोजे, हर महीने के 3 दिन के रोजे तुम्हारे दिलों के अंदर के कीना कपट और तुम्हारे दिलों के अंदर के जलन, दूसरों के बारे में जो कुछ बुग़्ज़ व नफरत है, उन सब को दूर करने लगते हैं। क्या पता चला? जब रमजान के महीने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का महीना करार दे रहे हैं और इसके जरिए दिलों की गंदगी की सफाई होगी करके खुशखबरी दे रहे हैं, तो रमजान के आते आते भी अपने बहन भाइयों के बारे में, और अपने मुसलमान बहन भाई हो या अपने सगे रिश्ते हो या कजिन्स हो और दूसरे कोई क्लासमेट हो, जॉबमेट हो, कोई भी, उनके बारे में हम अपना कीना के कपट बाकी रखें। तो सोचिए, क्या हम रमजान का सही इस्तेकबाल कर रहे हैं? और फिर एक बड़ी मुसीबत, जन्नत के दरवाजे खोले जा रहे हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, शैतानों को जकड़ दिया जा रहा है, ये सारी खुशखबरियां सुन रहे हैं। रमजान में स्पेशली युनादी मुनादिन, ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि या बागी अल खैरी अकबिल, ऐ नेकी के चाहने वाले आगे बढ़ के आ जा, व या बागी अश्शर्रि अक़सिर, ऐ बुराई के चाहने वाले पीछे हट जा, रुक जा। ऐसे वक्त में भी हम रमजान के मुबारक महीने में हर हफ्ते में एवरी वीक 2 days, 2 दिन, मंडे एंड थर्सडे, पीर और जुमेरात ऐसे हैं जिसमें अल्लाह की बारगाह में हम सब के अमाल पेश होते हैं, और अल्लाह ताला उन लोगों का अमल, उन लोगों का अमल नहीं देखता है, उनके आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होते। कौन? वो दोनों जो आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखे हुए हैं, बुग़्ज़ व नफरत रखे हुए हैं, बातचीत छोड़े हुए हैं। अल्लाह क्या फरमाता है? मुस्लिम शरीफ की रिवायत उठाकर देखें, अंज़िरा हादैनी हत्ता यस्तलिहा, इन दोनों को ऐसे ही मोहलत देकर छोड़ दो यहां तक कि वो दोनों आपस में सुलह कर लें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, रमजान का मुबारक महीना आ जाए और हम शिर्क व बिदअत से, गुनाहों से अपने दिल को पाको साफ ना करें, तौबा इस्तिगफार ना करें, अपने दिल को अपने भाइयों के बारे में बुग़्ज़ व नफरत से पाको साफ ना करें, तो फिर सोचिए, इस रमजान में और भी बहुत सारे जो नेक आमाल हम करेंगे, अल्लाह के पास क्या वो पहुंचेंगे? क्या उनका अजर सवाब हमें मिलेगा? इसलिए हमें रमजान का इस्तकबाल करने के हवाले से सबसे फर्स्ट पॉइंट, कि बहुत खूबसूरत होकर, मेहमान के सामने अच्छे कपड़े पहनकर, और उमूमन खवातीन घर के अंदर जब उनकी कोई बहुत ज्यादा लवली पर्सन, बहुत ही ज्यादा महबूब तरीन कोई खातून आ जाती हैं, तो फिर उसके लिए कितना अच्छी तरह से अच्छे अच्छे साड़ियां, अच्छे अच्छे शलवार कमीज, अच्छे अच्छे ड्रेस, सब कुछ पहनकर इस्तकबाल करना चाहती हैं ना। सोचिए, रमजान के रोजे, हर महीने के 3 दिन के रोजे, दिलों की कदूरतों को जब दूर करने के लिए हैं, और हम इन कदूरतों को अपने ही दिलों में पाल कर हम रमजान का इस्तकबाल करेंगे, तो ये कैसे मुनासिब है? अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको सिद्क़ दिल से तौबा करते रहने की तौफीक अता फरमाए, और सच्चे दिल के साथ
اپنے تمام بھائی بہنوں کو جنہوں نے ہمارے بارے میں کسی بھی طرح سے کوئی زیادتی کی ہو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے اس کی بے انتہا، بے حد و حساب رحمتوں کو پانے کا حقیقی حقدار بنا دے۔ جی ہاں، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، بڑے دل گردے کی بات تو ہے کہ کسی نے ہم پر زیادتی کی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ لیکن رمضان ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، سکھاتا ہے نہیں سکھاتا؟ چلیے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگ پوری توجہ سے سن رہے نہیں سن رہے پتا چلے۔ فتح مکہ جسے کہتے ہیں، کئی علماء کے قول کے مطابق انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح مکہ کس مہینے میں پیش آیا؟ جلدی سے لکھیں کوئی لکھنے والے حضرات، فتح مکہ کس مہینے میں؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی، رمضان کے مہینے میں فتح مکہ۔ دیکھیے، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا، ان میں سے 2 جنگیں بڑی اہم ہیں۔ فتح مکے کو حقیقت میں ایک آمنے سامنے کی مکمل طور پر لڑائی نہیں ہوئی، لیکن شمار کیا جاتا ہے اس میں، اس تیاری سے نکلے تو تھے۔ پہلی بدر ہے، یہ بھی رمضان میں ہوئی، جو حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی، جیسے کہ آپ کے کوئز میں آگے آئے گا، اور یہ بدر رمضان میں۔ اور پھر فتح مکہ، یہ بھی رمضان میں۔ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں، معاف کرنا، اس چیز کو میں رمضان کی مناسبت سے جوڑ کر فتح مکے کا ذکر کیوں لایا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہ کر نبوت کا اعلان کرتے رہے، اپنا دعوت دیتے رہے نا۔ پھر اس کے بعد مدینہ آئے تو 8ویں سال مکہ فتح ہوا۔ کیا مطلب؟ آپ کی نبوی زندگی کے 21 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اب 21 سال تک مکہ کے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو جانی طور پر پریشان کرتے رہے، مالی طور پر دکھ اور تکلیفیں دیتے رہے، نفسیاتی طور پر پریشان کرتے رہے، عزت و آبرو میں بھی انہوں نے بہت سارے دھبے لگائے، بہت ساری تکلیفیں یعنی یوں سمجھیے کہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پر انہوں نے توڑے۔ لیکن اسی رمضان کے مبارک مہینے میں فتح مکے کے موقع پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم، جاؤ تم سب کے سب معاف ہو، تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب پر کوئی گناہ نہیں ہے، اب تمہارا کوئی حساب نہیں ہے۔ سخت سے سخت ترین دشمنوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے معاف کر دیا؟ کتنے بڑے دل گردے کی بات ہے۔ ارے وہ رسول تھے تو کر سکے، ہم نہیں کر سکتے، ایسا مت بولیے۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نمونہ کہاں بنایا؟ تو بات کافی ہو جا رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ استقبال رمضان میں میں اس چیز کو بہت ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج روزہ فرض ہے، اس پر بہت تقریریں ہم سنتے ہیں، رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ قرآن سے ہمارا رشتہ جڑنا چاہیے، اس پر تقریریں بہت ہم کرتے ہیں اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ الحمدللہ مساجد میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ عام دنوں کے مقابلے میں کس طرح جگہ جگہ مصاحف رکھے ہوتے ہیں، مصحفوں کی، قرآن کریم کی تعداد بڑھ جاتی ہے، پڑھنے والوں کی بھی۔ اور پھر اس کے علاوہ کئی لوگ اسپیشلی عمرہ کے لیے رمضان میں نکلنے کی بڑی کوششیں کرتے ہیں، افطار کی دعوتیں وغیرہ بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات، بلکہ کئی لوگ رمضان کو خاص کر لیتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، دلوں کی صفائی کا معاملہ استقبال رمضان سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے، بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ اور یہ دلوں کی صفائی میں صبر اور معافی، یہ دونوں خصلتیں، دونوں خوبیاں ایسی ہیں کہ ان دونوں کا جو اجر ہے نا، آئیے ذرا میں ایک اور پوائنٹ کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں۔
सब लोग पूरी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं ना, चाहे जूम पर हो या यूट्यूब पर हो? क्या एक और पॉइंट की तरफ? फॉलो आजकल जी। हम सब लोग नेट बहुत इस्तेमाल करते हैं, जरूरत बहुत पड़ती है, तो क्या चाहते हैं? सस्ते से सस्ता अनलिमिटेड पैक मिले, है कि नहीं? लेकिन अल्लाह अकबर, तीन काम ऐसे हैं, नेकियों में तीन नेकियां ऐसी हैं, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद, तौहीद के बाद, तीन नेकियां ऐसी हैं जिनका अजरो सवाब अनलिमिटेड है। एक, ये रोजा, बिलखुसूस रमजान का, इसके अलावा दूसरे नफिल रोजे भी। पता है ना ये बात तो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस हम सुनते रहते हैं कि अल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला सबइमिअत ज़िफ। एक नेकी, उसका सवाब 10 गुना, बल्कि आगे बढ़कर 700 तक बढ़ा चढ़ाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देता है। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिह। सिवाय रोजे के, इसका अजर मैं ही दूंगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए उलमा कहते हैं रोजे का जो अजर व सवाब है वो लिमिटेशन के साथ नहीं है। इसी तरह सब्र है। सब्र, अगर हम सब्र सही माने में करें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है, तो उसका भी अजर व सवाब अनलिमिटेड है। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहद्दो हिसाब दिया जाता है। बिगैर हिसाब अल्लाह खुद कह रहा है। और माफी फमन आफा व अस्लहा फअजरुहु अलल्लाह। जो माफ कर दे, जिनसे दूरियां थीं उनसे मिल जाएं, जिनसे लड़ाइयां थीं उनसे सुलह कर लें, जिनसे ताल्लुकात दूर थे उनसे अपने ताल्लुकात बना के रखें, तो फिर फअजरुहु अलल्लाह। ये भी कुरान करीम की आयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ही है उसका अजर, वो जितना चाहे दे दे, उसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये रमजान का मुबारक महीना, रोजों का महीना, सब्र का महीना, अफो दरगुजर का महीना है कि नहीं? अफो दरगुजर का स्पेशली हमको लैलतुल कद्र में क्या दुआ सिखाई गई? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्व फअफु अन्ना। अब हम कहें अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन्नका, बेशक, अफुव्वुन, तू बड़ा माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ्वा, माफी को पसंद भी करता है, फाफु अन्नी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन सोचिए, इस दुआ को हम जुबान से कर रहे हैं, क्या दिल से उसको समझ भी रहे हैं? क्यों? सूरह नूर की आयत उठाकर देखें, सूरह नूर की आयत, अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम। बात दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा हूं मैं, रमजान का इस्तकबाल कैसे करना है इसकी इंपॉर्टेंसी को, अहमियत को बता रहा हूं कि हमारे दिलों की सफाई, सब्र और रोजा और अफ़ो दरगुजर कैसे ये जुड़े हुए हैं। आप सोचिए, अगर आप मर्द हैं तो आपकी बीवी पर, आपकी बेटी पर, आपकी बहन पर, आपकी मां पर कोई तुहमत जिना का लगाए और आपको 100% यकीन है कि आपकी ये चारों रिश्तेदार, चारों में कोई एक बिल्कुल पाक है, आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे? अल्लाह अकबर। ऐसा ही वाकये का सूरह नूर के अंदर जिक्र में तफसील में नहीं जाना चाहता, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि मिस्ताह को ना देने के लिए, उन पर सदका खैरात के दरवाजे बंद करने के लिए तुम जो कसमें खा रहे हो, अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम। उनसे गलती हो गई, उन्होंने खुद तो तहमत नहीं लगाई लेकिन किसी के हाँ में हाँ मिला दिए, तो आप इतने नाराज हो गए
ना आप उनको माफ करो कि आप नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। सोचिए, रमजान का महीना रिफ्रेशर कोर्स है, रमजान का महीना हमारे लिए एक ट्रेनिंग कैंप की तरह से है, रमजान का महीना हमारी बेहतरीन तरबियत करने के लिए है। तो हम इसमें इबादात में, नमाजों में, नफिल नमाजों में, तरावियों में, रोजों के हवाले से और कुरान मजीद की तिलावत के हवाले से, दूसरे और नेकियों में आगे बढ़ने के बारे में, तमाम किस्म की बुराइयों से पीछे रहने के बारे में खूब अच्छी तरबियत हासिल करें, अच्छी तरबियत हासिल करें। उसी में अपने दिल की भी तरबियत, अपने दिल की सफाई के हवाले से भी बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा अहम है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस मौजू की अहमियत और इंपॉर्टेंसी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि हमारे दिल की बहुत सारी इबादतें इसी सब्र अफ़ो दरगुजर के रास्ते से गुजरती। कई सारी इबादतें, इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने सब्र की क्या तारीफ बयान फरमाई कि सब्र तीन किस्म का, एक नेकियों पर मजबूती के साथ कायम रहते हुए सब्र करते रहना, उसमें भी जो तकलीफें, जो मशक्कतें आती हैं उनको झेलना, और उस नेकी पर जमे रहना, उस नेकी को करते जाना। सब्र की दूसरी किस्म, बुराइयों से बचने के लिए, गुनाहों से बचने के लिए भी इंसान को बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत होती है। और अल्लाह की तरफ से जो आजमाइशें आ जाती हैं, जो आजमाइशें आ जाती हैं, उसके हवाले से भी, उसके हवाले से भी हमें सब्र की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो हर हालत में हम सब्र करते रहें, हर हालत में हम सब्र करते रहें, और अफदरुजर के मामले को हम अपने लिए इस तरह से रखें कि किसी भी सूरत में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिदा और उसकी खुशनुदी पाने की खातिर सबको माफ करने के लिए दिल बड़ा रखें। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, टाइम काफी हो रहा है, और भी दूसरे कई सारे हमारे प्रोग्राम भी आज के इसी महफिल में सुनाए जाने वाले हैं, और हो सकता आपके बहुत सारे सवालात हों, उनके जवाबात भी तशफ़ी बख्श आने हैं। इसलिए मैं मुख्तसर अब कुछ पॉइंट्स की शक्ल में गुफ्तगू करता हूं। ज़रा तवज्जो फरमाइए कि हम अपने अंदर सब्र की स्पिरिट पैदा करें, सब्र की एक आदत अपने अंदर डालें, अफ़्व दरगुज़र की आदत डालें, और नेकियों को हम अपनी एक आदत बनाने की कोशिश करें, अपनी एक आदत बनाने की कोशिश करें। इसलिए कि माहिर नफ्सियात कहते हैं कि बाज बाज ऐसे काम होते हैं कि इंसान को सब्र से, हिम्मत से करना पड़ता है, यहां तक कि उसका वो आदी हो जाए, फिर उनके अंदर उसको लज्जत आने लगती है। और ऐसे मौके पर मुझे शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह की वो बात बड़ी प्यारी लगती है। वो कहते हैं कि बाज नेकियां इंसान को ऐसी लगती हैं कि करने को जरा भी जी नहीं चाहता, लेकिन क्या करे इंसान, अपने नफ्स पर दबाव डाले, अपने नफ्स पर दबाव डालकर वो नेकियां अंजाम देने की पूरी कोशिश करे, इस हद तक, इस हद तक कि कुछ ही अरसे में, नंबर एक वो अपने नफ्स को आदत डालना, नंबर दो दुआ बकसरत करना, बकसरत। जैसे खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला को एक दुआ क्या सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल खैरि कुल्ली आजिलिही व आजिली व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्ली आजिलिही व आजिली। ऐ अल्लाह, मैं हर तरह की भलाई का तुझसे सवाल करता हूं, वो इस दुनिया की आखिरत की हर तरह की भलाई और हर तरह की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूं, चाहे वो बुराइयां दुनिया की हो, आखिरत की हो। फिर उसके बाद फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नत व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। ऐ अल्लाह, तुझसे मैं जन्नत का सवाल करता हूं और हर उस नेकी का सवाल करता हूं जो मुझे जन्नत में लेकर जाए। व अऊज़ु बिका मिनन नार, और जहन्नम से तेरी पनाह तलब करता हूं। व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल, हर वो अमल, हर वो बात जो जहन्नम में ले जाए, उससे भी तू मुझे पनाह अता फरमा। ये प्यारी दुआ सही हदीस से साबित है, इसको बकथरत करते रहें। तो ये मैं अपनी तरफ से दुआ का इजाफा कर दिया। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह आगे फरमाते हैं कि जब इंसान
अपने नफ्स को उस नेकी का खूगर बनाएगा, आदत डालेगा, बहुत जल्द एक वक्त ऐसा आएगा, पहले उस नेकी को करने के लिए जितना जोर देना पड़ता था, दिल नहीं चाहता था, अब ऐसी आदत हो जाएगी कि वो नेकी में अगर जरा पीछे हो तो वो बड़ा बेचैन हो जाए। अल्लाह अकबर, बड़ा बेचैन हो जाए। और ये वाकईतन सच्ची बात है। इसीलिए इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर भी हमें नेकियों की आदत डाल लेने के हवाले से, ये जो सूरह शम्स के अंदर हम पढ़ते हैं ना, कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा, इसके मफहूम, इसकी तशरीह वगैरह पर पढ़ लें, इसकी तफसीर को पढ़ लें तो ये मेरी बात आपको समझ में आएगी। आखिर में पॉइंट्स की शक्ल में मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा भी रहा हूं, उर्दू समझने वालों के लिए इंशाअल्लाह किसी कदर आसानी हो जाएगी अल्लाह के तौफीक से। आ, अच्छा, मैं समझा कि यहाँ शेर वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। इस रमज़ान की खूबियों को हदीस के हवाले से कुछ पॉइंट्स में हम अपने जहन में रखें कि ये वो महीना जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, ये वो महीना जो बहुत सारी आसमानी किताबें इसके अंदर नाजिल हुए, सहीफे नाजिल हुए, इसी में जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, रहमत के दरवाजे खुलते हैं, आसमान के दरवाजे खुलते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मरदूद शैतानों को जकड़ दिया जाता है, नेकोकार बदकार के लिए मुनादी होती है, यानी नेकियों में आगे बढ़ जाओ, बुराइयों से पीछे हो जाओ। और हर रात, ये नंबर 9 पॉइंट पर गौर करें, हर रात जहन्नमियों को आजाद किया जाता है। रमजान के महीने की फजीलतों में से, खूबियों में से एक खूबी यह है, अब अगर हम अपने आप को नेकियों का खूगर ना बनाए, नेकियों का आदत ना डालें, बुराई से दूर ना रहें, अपने नफ्स को पाक ना कर लें, तो सोचिए हम जहन्नम से आजाद होंगे। और ये ऊपर के सारे 9 पॉइंट्स, उसमें से खासकर फर्स्ट और 2 को निकालने के बाद सारी हदीसों का, बातों का हवाला सही बुखारी 1899 और सही मुस्लिम 1079 और तिरमिजी की ये सही हदीस है 682। अब नंबर 10 पर गौर कीजिए, इसी में लैलतुल कद्र है, जो उससे महरूम रहा वो बदनसीब, बदनसीब। जो मैंने कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन हुरिम खैरहा फकद हुरिम। सुनन निसाई और इब्ने माजा की रिवायत है। नंबर 11, ये महीना, रमजान का महीना, दुआओं का बहुत गहरा ताल्लुक है। इसलिए हमने आज से ही, उमूमन पिछले कई सालों से हम 20 शाबान से लेकर 20 रमजान तक तेलुगु में स्पेशल रमजान कोर्सेज करते हैं। आज ही शुरू हुआ है। और तफसीर की क्लास के साथ में हमारी दुआ की क्लास होती है। हर दिन एक नई दुआ लोगों को सिखाई जाती है। अगर आप में से कोई तेलुगु जानने वाले हैं तो उस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। डेली 2 बजे वो क्लास हमारी इंडिया के टाइम के हिसाब से शुरू होती है, घंटा सवा घंटा तक चलती रहती है। तो दुआ कबूल होने के हवाले से सूरह बकरा की आयत भी है ना, आयत नंबर 187। कहां पर है वो आयत? 183 से लेकर 187 तक जो आयतें रमजान रोजे के अहकाम मसाइल से मुतालिक है, उसी के बीच में आयत नंबर 186 है। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और हदीस से भी यहां हवाले दिए गए हैं। यह महीना जिक्र शुक्र का महीना है, सब्र का महीना है, गुनाहों के कफारे का महीना है। अल्लाह अकबर। यहां तो मुस्लिम शरीफ की एक हदीस का हवाला दिया गया, लेकिन वो मशहूर हदीस भी आप सुन सकते हैं, मन साम लैलतुल क़द्र ईमान व इहतिसाबा, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमान व इहतिसाबा, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमान व इहतिसाबा। और ये तीनों हदीसें मुस्लिम शरीफ और सही बुखारी की। लेकिन 2 कंडीशन इसमें जो दिए गए हैं उन पर गौर करें आप। क्या है? आपका ये क़ियाम, आपका ये सियाम और ये लैलतुल क़द्र में इबादत, सब कुछ 2 कंडीशन से रिलेटेड होना चाहिए। नंबर 1 ईमान के साथ, नंबर 2 अल्लाह से नेकी की उम्मीद करते हुए, तो आपके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये महीना गुनाहों के कफारे का, खताओं के दरगुजर हो जाने का और मगफिरत का ये कीमती ऐसा मौका है। अल्लाह अकबर। इस सिलसिले में जो तिरमिजी में हदीस का हवाला दिया गया है, मुसद्दरक हाकिम के अंदर और तफसील से है ना, वो मशहूर हदीस सुनते रहते हैं आप लोग कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन आमीन कह रहे थे। उसको याद कर लें, कितनी उसके अंदर भयानक तंबीह और भयानक वईद दी गई है। और ये महीना रफ़े दर्जात का, हमारी दर्जात की बुलंदी का महीना है। इब्ने माजा की सही हदीस है। और ये रमज़ान उमरा का महीना है, इसमें जो उमरा करेगा उसे हज के बराबर का सवाब मिलेगा। और ये रमज़ान जो इसमें रोजा रखता है,
सिद्क दिल से, ईमान और एहतिसाब के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स सिद्दीकीन में शुमार किया जाएगा, शुहदा में शुमार किया जाएगा। एक तो शहीद वो है जो एलाए कलिमतुल्लाह की खातिर अपना खून बहाता है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की उम्मत मोहम्मदिया पर बड़ी करम फरमाई है। उसके अलावा शहादत के दर्जे पर कई लोगों को फाइज किया गया है, उनमें से एक है सईद इब्न हिब्बान की रिवायत है ये। और नंबर 20, जन्नत में दाखिले का ये बहुत बड़ा सबब है। और ये महीना सियाम का, क़ियाम का, तरावी का, सदका खैरात का, तिलावत कुरान का, एतिकाफ का और बदर व फतह में नुसरत का महीना है। ये एक शॉर्ट लोगों को याद रहे, और इससे फिर कहीं तफसीलात जानना चाहें, हदीसों को खोलकर और पढ़ना चाहें तो आसानी हो जाए, उसके खातिर हमने ये जिक्र किया है। लेकिन जैसे आप सबको पता है कि रमजान में पूरे महीने भर के रोजे रखना ये इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन, एक पिल्लर है। इसलिए बिलखुसूस रोजे के हवाले से हमें एक 20 फजीलतों को, 20 खुसूसियात को मुख्तसर शक्ल में जहन में रखने की कोशिश करना चाहिए कि हम जो रोजा रखते हैं रमजान में तो रखना फर्ज है, किसी तरह से इसमें नहीं मुझे काम है, मुझे ड्यूटी नहीं से मैं नहीं निकल सकता, मैं नहीं कमाया तो मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा, ये सब बहानों में अपना वक्त इतना जाया ना करें कि रोजे ही छोड़ दें। और बात आई तो थोड़ा सा मैं जिक्र करता हूं, मुझे इजाजत दीजिए प्लीज, कि हमारी बहुत सारी वो हमारी माई बहनें जो हमल से होती हैं या बच्चों को दूध पिलाती हैं, इसको रोजा छोड़ने का एक सबब समझती हैं। नहीं, अगर आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चे की सेहत के लिए खतरा हो तभी रोजा छोड़ने की इजाजत है, और रोजा छोड़ें तो बाद में कदा कर लें। जैसे खास कर ये ठंडियों वाले दिनों में दिन छोटा होता है, मौसम ठंडा होता है, तो ऐसे दिनों में कदा करें। बहुत सारी बहनों के सवालात आते रहते हैं, 2 बड़ी गलतियां करते हैं। एक गलती क्या है, समझते हैं कि अगर हमल से हैं, अगर बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो रोजा रखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ना। और कुछ लोग समझते हैं हाँ रोजा छोड़ देंगे लेकिन फिदिया देंगे। नहीं 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 नहीं, पहली बात तो यह है कि ये उमूमी छुट्टी नहीं है जैसे मुसाफिर को और बीमार को दी गई है, बल्कि यहां पर एक तरह की रुखसत कि अगर आपको आपके बच्चे को तकलीफ है तभी आप रोजा छोड़ सकती हैं, वरना नहीं छोड़ सकती। और रोजा छोड़ेंगी तो उसकी कदा देंगी। हाँ, वाकईतन सेहत इतनी खराब है कि ठंडी के दिनों में, बाद के दिनों में कदा करने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब नहीं है, आगे सालों में भी नहीं है इस तरह की हालत। तब जाकर फिर फिदिये की बात आएगी। तो थोड़ा इसको अच्छी तरह से जहन नशी कर लेना ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। और रमजान में रोजा 5 पिलर्स में से एक वेरी इंपॉर्टेंट जो पिलर है उसमें हम किसी तरह से सुस्ती कोताही ना करें। रोजा ये हमारी मगफिरत और अजर अजीम का सबब है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 में इसका जिक्र है, और सूरह बकरा आयत नंबर 184 में क्या है, रोजा बहुत ही बेहतर चीज है, वहां तसूमु खैरुल लकुम। और रोजा तकवा का सबब है, सूरह बकरा 183 आयत नंबर है। और रोजा ढाल है। ढाल कैसे है, गुनाहों से बचने के लिए। वो मशहूर हदीस सही बुखारी की है ना, नौजवानों शादी करो, अगर शादी करने की ताकत नहीं है तो फिर रोजा रखो। क्यों, इससे गुनाहों से अपने आप को बचाने में बड़ा कंट्रोल होगा। और मुसनद अहमद की हदीस से साबित है कि ये जहन्नम से बचाव के लिए भी बड़ा जरिया है। और इसी तरह से एक दिन के रोजे के बदले, मुस्लिम शरीफ की बुखारी की सही हदीस है, मन साम यौमन फी सबीलिल्लाह बाअद अल्लाहु वजहहु अनिन नारी 70 खरीफा। जो एक दिन अल्लाह के रास्ते में रोजा रखता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल के लिए दूर रखता है। और तिरमिजी की हदीस से पता चलता है जहन्नम से आसमान और जमीन के दरमियान की उतनी दूरी उस इंसान के लिए हो जाती है। और हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे वसीयत कीजिए कि मुझे किसी नेक अमल के बारे में। तो अल्लाह के रसूल सब फरमाते हैं अलैका बिस्सियाम फइन्नहु ला मिथला लह, और एक रिवायत में ला अदल लह, कि तुम रोजा रखो, उसके बराबर का कोई नेक अमल नहीं है। अब उसके बाद 8 नंबर पॉइंट पे गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां रोजेदार की कितनी बड़ी शान है। और जो लोग जानबूझकर ताकत रखने के बावजूद रोजा छोड़ते हैं वो लोग कितने बड़े महरूम हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जन्नत के जो 8 दरवाजे रखे हैं ना,
उनमें से एक दरवाजा स्पेशली रखा है रोजेदारों के लिए, और उसका नाम रखा है रैयान। आ जाओ, दुनिया में प्यासे थे, यहां सैराब हो जाओ। रई से रैयान। अब गौर कीजिए, सही बुखारी की हदीस में आता है, सवाल होगा ऐन साइमून, कहां हो भाई, आ जाओ रोजे वालों। जब सारे आ जाएंगे उनको दाखिल कर दिया जाएगा, युगलक, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, किसी दूसरे को उसमें से दाखिल होने की इजाजत ही नहीं होगी। अल्लाह 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 अल्लाह, रोजे की कितनी बड़ी शान है। तो रमजान में भी और दूसरी नफिल रोजे भी रखने का बहुत ज्यादा एहतमाम करते रहिए। नंबर 9, जन्नत में ले जाने वाले 4 आमाल का जिक्र एक मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उनमें सबसे पहले रोजे का जिक्र किया, दूसरा जनाजा, तीसरा मिस्कीन को खाना खिलाना, और चौथा मरीज की इयादत करना। नंबर 10 पॉइंट है, रोजा गुनाहों का कफारा है। नंबर 11, रोजेदार के लिए अजर सवाब बेहद हिसाब है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। और नंबर 12, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक खुशी दुनिया के अंदर इफ्तार करते हुए, दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इस रोजे का अजर सवाब लेते हुए। नंबर 13, रोजेदार दिन भर में भूखा रहने की वजह से मैदे से एक अजीब सी खुशबू, कहिए कि एक अजीब सी बू आती है। ये पान बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने वाले, उनके मुंहों से जो बदबू आती है वो नहीं है भाई मेरे, ये मैदे से निकलने वाली एक बू होती है। लेकिन रोजे की वजह से है वो, इसलिए अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा वो पसंदीदा है। नंबर 14, रोजा और कुरान। अल्लाह अकबर। कुरान का कितना गहरा ताल्लुक है रमजान से ना। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने कहा ना। और मुस्लिम अहमद की सही हदीस है, अस्सौम वल कुरान यशफ़आन। दुनिया में छोटे छोटे कुछ मसले होते हैं, मामूली पुलिस स्टेशन में भी कभी जाना पड़ता है, अरे कोई लीडर मिला तो अच्छा था यार, हो जरा आके सिफारिश तो भी करते थे, सोचते हैं ना इस तरह से। लेकिन जब कियामत के दिन वहां आप रहेंगे, मुख्तलिफ मरहले ऐसे वहां पर आएंगे, आप तड़पते रहेंगे, काश कोई सिफारिशी मिले, कोई सिफारिश मिले। रोजा और कुरान से बढ़कर बेहतर सिफारिशी कौन होगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो रोजा रखते हो, उन लोगों के लिए जो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ते हो। 30-30-30 के बारे में इंशाल्लाह बाकी तफसीलात और भी आपको सुनाई जाएंगी। 15 नंबर पॉइंट, रोजा सीने को कीने से साफ रखता है। इसी पर ज्यादा हमने जोर शुरू पॉइंट में दिया था, और सही तरगीब की वो हदीस है। नंबर 16, सौम खैर के दरवाजों में से एक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी इसके बारे में लंबी बात हो सकती है किसी और मौके पर। नंबर 17, रोजे पर यह पॉइंट भी गौर कीजिए इस पर। मुस्नद अहमद की सही हदीस से साबित है, जो आदमी रोजा रखते रखते रोजे की हालत ही में वफात पा जाए, नंबर 1 उसके जन्नती होने की खुशखबरी दी गई, और नंबर 2 अब से लेकर जब वो मरा है कियामत कायम होने तक वो तो रोजा नहीं रख रहा है, मुर्दा है, लेकिन उसे रोजा रखने का सवाब बराबर मिलता ही जाता है। लेकिन 2 पॉइंट्स यहां पर जरा तवज्जो फरमाइए इस नंबर पर। एक, अरे इतनी बड़ी फजीलत है, तब तो मैं रोजे में मरने की कोशिश करता हूं। अपने आप को इरादा नहीं रखना, कोशिश नहीं करना, समझ रहे हैं ना। जैसे बाज लोग नादान आ गए थे, हरम के अंदर आके ऊपर छत से गिर के अपने आप को मारने की कोशिश किए, आत्महत्या जिसे कहते हैं, खुदकुशी। क्यों भाई, नहीं किसी ने कहा था मक्का में जाके मरेंगे तो सीधा जन्नत में जाएंगे। गलत है ये, इस गलती से बचना है अपने आप को। दूसरा, मामूली छोटी छोटी किसी तकलीफ, अब वो कहा मेरी जान जाती कि मैं रोजा नहीं रहता, अयो मैं मर जाता हूं मैं रोजा नहीं रहता, इस तरह से जो डरपूक बनते हैं, ये भी सही नहीं। खैर में आगे रहें, अपने आप को शर से दूर रखें। और नंबर 18, रोजेदार के लिए जन्नत में बुलंद बाला खाने। और इस मौके पर बड़ी प्यारी हदीस आती है, पढ़कर हंसी भी आती है माशाअल्लाह तबारकल्लाह, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जन्नत के बाला खानों का जिक्र कर रहे थे। क्या कह रहे थे मालूम है? जन्नत में ऊंचे बुलंद बाला खाने ऐसे हैं, गुरफ, आम जन्नत में रहने वाला
ان کو ایسے دیکھے گا جیسے تم دنیا میں زمین پر کھڑے ہو کر ثریا کے ستارے کو دیکھتے ہو. تو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے, ادھر سے ایک بدو گزرا تو بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند نیک اعمال کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک روزے کا بھی ذکر ہے. اور نمبر 19 پوائنٹ, روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. اللہ اللہ اللہ, کتنی بڑی خوبی ہے. اب آپ کیا کریں, اپنے لیے بھی دعا کریں, اپنے والدین کے لیے دعا کریں. سن رہے غور سے, ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو آپ کو ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں. اللہ ان کو معاف فرمائے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ ان کے ہمارے دلوں کو جوڑ دے, اللہ رب العالمین ان کے ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے. جاؤ جی, کیا بولتے تم, انہیں اتنی تکلیفیں دیا اس کے لیے میں دعا کرنا. آج ہم لوگ ایسا بولتے ہے نہیں, لیکن لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے جو اس کے لیے, جس سے وہ نفرت کرتا ہے, اس کے کسی اذیت اور تکلیف پر, لیکن اس کی ہدایت کے لیے دعا کرے. ارے میرے بھائی ذرا سوچو نا, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے دعا کی کہ اللہ اگر وہ اسلام کے لیے بہتر ہے تو تو اس کے سینے کو کھول دے کر کے, اس سے بڑا برا ہے آپ کا ایک دینی بھائی. پلیز ذرا ہم اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں. اللہ مجھے سب سے پہلے اس کی نیک توفیق دے, آپ سب سننے والوں کو بھی. اور روزہ کھلوانے کا اجر, جی ہاں, من فطر صائما كان له مثل اجری لا ينقص من اجوره شيء. کہ آپ کسی روزے دار کو افطار کروائیں گے. افطار کروانے کا مطلب بہت بڑی پارٹی کرنا, بڑے بڑے پکوان کروانا نہیں میرے بھائی. ایک کھجور سے بھی ہو, ایک پانی کے بوتل سے بھی ہو, جوس کا بوتل دے کر بھی ہو, حالات کے اعتبار سے, ایریے کے اعتبار سے, اشخاص کے اعتبار سے, اپنی طاقت کے اعتبار سے ایسے نیک کاموں میں حصہ لیجیے, تاکہ آپ ایک رمضان میں ایک روزے کا اجر نہیں بلکہ روزے داروں کو افطار کروا کر کئی روزوں کا اجر حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے اہم پھر ایک مرتبہ میں یاد دلاؤں گا کہ قرآن سے اپنا رشتہ بہت مضبوط کریں. پڑھنے کے حوالے سے, سمجھنے کے حوالے سے, غور و فکر کرنے کے حوالے سے, اس کی دعوت اور اس کی تعلیمات لوگوں میں پھیلانے کے حوالے سے. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں. ہمارا ایک بہترین ویڈیو ہے کہ قرآن کن کن مقاصد سے پڑھنا چاہیے, اس کو بھی سنیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی ان باتوں کو سب سے پہلے کہنے والے کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سر, اللہ آپ کو بہت جزاک خیر. واقعی ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے, بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے, اور خاص طور پہ جس چیز پہ زور دیا نا اس پہ زور دیا نہیں جاتا ہے. وہ رسمی باتیں ہوتی ہیں لیکن خاص طور پہ دل کی صفائی جو ہے نا, واقعی بہت ہی بہت اچھے سے آپ نے کنیکٹ کیا اس کو فتح مکہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ کسے آپ سب لوگ سے ماشاء اللہ تقریباً 200 لوگ جڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, 100 لوگ تقریباً, اور یہاں پہ 100 لوگ. تو آپ لوگ تھک گئے ہیں, پروگرام بند کیا جائے یا